Good morning, everyone. This is the sum we will do in today's lecture. Paper Limited comes out with a public issue of share capital on 1/1/2019 of 30 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 5%. So, Paper Limited wants to sell shares to the public. It comes up with a public issue of 30 lakh equity shares of rupees 10 each. 30 lakh equity shares sell करना है at a premium of 5%. 10 रुपीज का 5% प्रीमियम इज 0.5, तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट कितना रहेगा? The share is of 10 rupees and the premium is 5% of 10 rupees. It will be 0.5, 50 paisa. So premium is of 50 paisa. Then now they are collecting the money, rupees 2.5. Rupees 2.50 is payable on application. Application में 2.5 rupees पे करना है and rupees 3 on allotment which is including premium. तो प्रीमियम का जो 50 पैसा है 0.5 वो अलॉटमेंट पे कलेक्ट करेंगे. सो सी इन द rupees 3 in allotment and they say including premium. तो 3 rupees जो अलॉटमेंट में कंपनी कलेक्ट करेगा उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड रहेगा. The issue was underwritten by two underwriters. The issue was underwritten by two underwriters, namely White and Black. The issue was underwritten by two underwriters. So there are two underwriters, White and Black. Equally, the commission being 4% of the issue price. इशू प्राइस मतलब कितने में हम शेयर सेल करेंगे? हम शेयर सेल करेंगे एट 10 rupees plus 5% premium, that is 10.50. So the issue was underwritten by two underwriters, namely there are two underwriters who will sell the shares of the company, White and Black. Equally उनको commission मिलेगा and उनको 4% of the issue price, that is 10 rupees plus 50 पैसा, that issue price is at premium. तो हमें face value का 4% नहीं, issue price का 4% premium देना है. That we will calculate while doing the sum. Each of the underwriter underwrites 60,000 shares firm, but the firm underwriting is 60,000. Firm underwriting is 60,000 shares. So firm underwriting up shares है 60,000. Subscriptions including firm underwriting came for 28,80,000. तो फॉर्म अंडरराइटिंग को इंक्लूड करके सब्सक्रिप्शंस है 28,80,000. तो फॉर्म अंडरराइटिंग भी पब्लिक से ही मिल चुका है 28,80,000. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स बीइंग वाइट का 15,60,000 and black का 10,80,000 and unmarked है 2,40,000. So marked application of white is 15,60,000, black is 10,80,000. Unmarked applications are 2,40,000. One of the allottees using forms marked with name of white of 6,000 shares fails to pay the amount due on allotment. तो यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया फॉर 6,000 शेयर्स. ऑल द अदर मनी due being received in full, including any due from the shares devolving upon the underwriters. मतलब
all the money has been received including the shares devolving upon the underwriters. मतलब underwriters को जो shares खरीदना है, जो public को share sell किया उससे भी पैसा सब मिला, जो underwriter ने खरीदा उसके ऊपर devolve हुआ, he had to purchase, that also all money has come. The commission was paid separately, commission due was paid separately, तो commission भी अलग से pay किया. You are required to prepare each underwriter's liability in shares in statement form and pass necessary journal entries to record the above events and transactions, including cash. मतलब हमें अभी liability of underwriter निकालना है and journal entries pass करना है. Assume that the benefit of firm underwriting is given to individual underwriters. बेनिफिट मिला है अंडरराइटर्स को, तो पहले फर्म अंडरराइटिंग लेस करेंगे, फिर लास्ट में ऐड करेंगे, एंड हम इसको अनमार्क्ड फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड नहीं ट्रीट करना है, मार्क्ड ट्रीट करना है. सो दैट इज व्हेन बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. सो लेट अस स्टार्ट. लायबिलिटी ऑफ underwriters. Liability of underwriters. Now what we will do, we will insert the column particulars, then we want basis, black, white and total. So दो ही underwriter है. What is it? Particulars, basis. First one is white, next one is black, next one is total. सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी यहाँ पे देखो, the issue was underwritten by two underwriters, namely white and black equally. मतलब यहाँ पे 50% का जिम्मेदारी दोनों को दिया है, और टोटल कितना शेयर सेल करना है, 30 लाख. क्वेश्चन में दिया है देखो 30 लाख इक्विटी शेयर, तो 30 लाख सेल करना है इक्वली. तो व्हाट विल बी द रेशियो, 1:1. मतलब both of them have to sell 15 lakh shares. So we will write 15 lakh. इसके बाद इसमें से लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस. Marked application is given. How much it is? 15,60,000. बट हमें यहाँ पे वो 15,60,000 में इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग है. ये 15,60,000, 10,80,000 इज इंक्लूसिव ऑफ फर्म अंडर राइटिंग. तो हम यहाँ पे जो है फर्म अंडर राइटिंग को लेस करके लिखेंगे नेट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग. मीन्स फर्म अंडर राइटिंग को माइनस करके फिर हम लिखेंगे, बिकॉज फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड के साथ लेस नहीं करेंगे, अलग से लेस करेंगे. तो 60,000 इज फर्म अंडर राइटिंग ऑफ बोथ वाइट एंड ब्लैक. सो 15,60,000 वाइट का था, वाइट का है 15,60,000, उसमें से हमने 60,000 माइनस किया. ब्लैक का है 10,80,000, तो उसमें से भी हम 60,000 माइनस करेंगे. तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी 25,20,000. करेक्ट. तो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो मार्क्ड applications including firm underwriting
कितना है, वाइट का इट वाज 15,60,000, उसमें से हमने -60,000 किया तो हमें मार्क्ड एप्लीकेशन मिला 15 लाख। सेम वे ब्लैक का 10,80,000 था, उसमें से हमने 60,000 माइनस किया तो इट बिकेम 10,20,000. And question में clearly they have told that each of the underwriter underwrites 60,000 shares firm underwriting. There is little bit here sentences not given properly, but each of the underwriter underwrites 60,000 of firm. फॉर्म का 60,000 है, फॉर्म अंडरराइटिंग का इट इज 60,000. सो फिर अनमार्क्ड को लेस करने के बाद हम फॉर्म अंडरराइटिंग लेस करते हैं. तो पहले अनमार्क्ड लेस करते हैं, पहले इसका बैलेंस निकालते हैं. बैलेंस कितना है, हाउ मच इज द बैलेंस, ये तो कुछ भी बैलेंस नहीं है. फिर यहाँ पे हाउ मच इज बैलेंस, 4,80,000. Here also it will come 4,80,000. इसमें से लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन गिवन इन क्वेश्चन, हाउ मच, 2,40,000. अनमार्क्ड कितना है, 2,40,000. सो वैसे तो दोनों का क्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज इक्वल, तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कैसे डिवाइड करेंगे दोनों अंडरराइटर में, क्योंकि इक्वल है इन दोनों का शेयर. तो हियर इट विल बी 1,20,000 लेस करना है ना. हियर ऑल्सो इट विल बी 1,20,000. 1,20,000. सो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस विल बी, ये नेगेटिव में ही आएगा 1,20,000, और ये कितना हो जाएगा 3,60,000. एंड दिस विल ऑल्सो 2,40,000 माइनस करो, दिस विल बी 2,40,000. नाउ हम क्या करेंगे, इसमें से पहले तो हम लेस करेंगे फर्म, जब भी बेनिफिट मिलता है फर्म अंडरराइटिंग का, तो पहले इंडिविजुअल अंडरराइटर को मिलता है तो हम पहले लेस करते हैं फिर ऐड करते हैं. दिस इज द मेथड 2. इसमें हम पहले लेस करते हैं फिर ऐड करते हैं, एंडिंग में ऐड करेंगे. जब अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं तो लास्ट में सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. इसमें जब बेनिफिट मिलता है अंडरराइटर को तो पहले लेस करते हैं फिर ऐड करते हैं. सो दिस बिकम्स 1,20,000 टोटल. सो फिर से बैलेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1,80,000. और दिस विल बी 3,60,000 minus 60,000, 3,00,000. This will be 1,20,000. अभी क्या करना है, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा, लेस एडजस्ट क्रेडिट एडजस्टेड. सो यहाँ पे एक ही ओनली 1 इज देयर ना, तो यहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं, एक में से लेस करना है यहाँ से, बस एक को ही देना है. तो 2 लोग रहते तो हम ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो, यहाँ पे भी पूरा का पूरा 1, पूरा का पूरा, एक का 1 है दूसरे का भी 1 है, निकाल देंगे 1 तो पूरा का पूरा शेयर व्हाइट का ब्लैक को एडजस्ट कर लेंगे.
सो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाइट ने ज्यादा ही सेल कर दिया, तो वो क्रेडिट हमने एडजस्ट किया। तो यहाँ पे वी मे राइट बैलेंस ऑल्सो और वी मे राइट नेट लाइबिलिटी ऑल्सो, चलता है जैसे भी लिखेंगे। ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,20,000 और दिस विल ऑल्सो बिकम 1,20,000। वे लास्ट स्टेप add firm underwriting, add firm underwriting, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे भी 60,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। सो टोटल लाइबिलिटी कितना होता है, टोटल लाइबिलिटी 60,000। अगर हम यहाँ पे बैलेंस लिखते तो यहाँ पे नेट लाइबिलिटी लिखना पड़ता 1,80,000 और ये 2,40,000। फॉर्म अंडर राइटिंग irrespective of number of shares sold, that becomes a liability. So this is the liability of individual underwriters. So इसके बाद हम क्या करना है, let us do the journal entries in the books of the company. Journal entries, what is the name of the company, Paper Limited. In the books of Paper Limited, so journal entries का कॉलम बना लेते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। लेट अस एडजस्ट, अमाउंट कॉलम भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, रुपीस, रुपीस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे क्योंकि एक साथ नहीं दिया, ये तो हम एक साथ करते थे, इतना पैसा एप्लीकेशन आएगा तो उसके बाद अंडरराइटर डिसाइड करेगा ना कि उसको कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा या खरीदना नहीं पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिसीव। और यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस मिला है 28,80,000, यहाँ पे एप्लीकेशन मिला है 28,80,000। सो एप्लीकेशन पहले मिलता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 28,80,000 इनटू एप्लीकेशन मनी है 2.5। सो कितना होता है 28,80,000 into 2.5, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो इतना एप्लीकेशन मिला तो ये कितना हो जाएगा 72 लाख। एप्लीकेशन के टाइम पे 72 लाख मिला, being application money received, being application money received। इसके बाद इसको, ये एप्लीकेशन मनी को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो ये एप्लीकेशन मनी जो क्रेडिट में है इसको कैंसल करना पड़ेगा, तो ये डेबिट में आ जाएगा। एंड इसके वजह से व्हाट इज गेटिंग क्रिएटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दिस ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, this is transfer of application money
to share capital being application money transferred, being application money transferred. Now next one, एप्लीकेशन के बाद अभी हमें अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए. क्यों मैं दोनों स्टेप्स बता रही हूँ, रिसीट का भी एंड ट्रांसफर का भी, बिकॉज ये क्वेश्चन में देयर इज अलॉटमेंट मनी एरियर्स ऑल्सो. सो पहले तो हम क्या करते हैं, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इनवाइट करते हैं by selling the by issuing the prospectus in the market. We are inviting shares, we are inviting subscription of shares from the public. तो एप्लीकेशन से हमें पता चलता है हाउ मेनी public, how many number of people are interested in the company shares. From the application money receipt only we understand how many of them are interested in purchasing the shares of the company. तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, एप्लीकेशन के बाद जहाँ पे हम अलॉटमेंट मनी में कितना पैसा मिलेगा, दैट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करते. I hope all of you have done this chapter in your जूनियर कॉलेज 12th स्टैंडर्ड. सो पहले तो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं. एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद इन द अकाउंट बुक कीपिंग एंड यू एंड अकाउंटेंसी यू हैव इशू ऑफ शेयर्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, जहाँ पे हमने देखा था कि पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है. एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच मनी इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पैसा मिलेगा. और इसमें दो चीज है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर का पैसा मिलेगा, शेयर का कैपिटल का पैसा मिलेगा. एंड हमने प्रीमियम लेने वाले, और ये प्रीमियम भी अलॉटमेंट में मिलने वाला है. अलॉटमेंट मनी में हम प्रीमियम कलेक्ट करने वाले हैं. सो हाउ मेनी शेयर का एप्लीकेशन मिला, 28,80,000, जिसमें 0.50 का हम क्या लेने वाले, प्रीमियम लेने वाले हैं. 28,80,000 एप्लीकेशन मिला. अगर 3 रुपया अलॉटमेंट मनी है जिसमें 0.5 इज द प्रीमियम, देखो क्वेश्चन में दिया है दैट 0.5 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, वो हमने कलेक्ट किया. और ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया अलॉटमेंट में मिलने वाला है जिसमें 0.5 का प्रीमियम है. ये 0.5 कैसे पता चला, प्रीमियम है 10 रुपीज का, ₹10 इज द फेस वैल्यू, उसका 5% इज प्रीमियम, 5% प्रीमियम है, तो 10 का 5% प्रीमियम इज इक्वल टू 0.5 रुपीज. अगर प्रीमियम 10 रुपीज का 5% है तो इट इज 0.5 रुपीज. सो यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट में 28,80,000 शेयर से 3 रुपया कलेक्ट करने वाले हैं. सो दिस कम्स टू हाउ मच, 86,40,000. और यहाँ पे शेयर का पैसा 2.5 है. So this 2.5 into 28,80,000 is 72 lakhs, and 28,80,000 into 0.5 is 14,40,000, being amount due on allotment. इसको बोलेंगे being amount due on allotment. इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये पैसा रिसीव करने से पहले यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप है इस पैसे को रिसीव करना, लेकिन वो करने से पहले हम यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ग्रॉस लायबिलिटी में. टोटल नंबर ऑफ शेयर था 30 lakhs, लेकिन अभी तक हमने 28,80,000
80,000 का ही एंट्री पास किया है। यहाँ पे देखो लाइबिलिटी ऑफ वाइट इज 60,000, वो तो ऑलरेडी 28,80,000 में फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूडेड है। मतलब 28,80,000 में ये फॉर्म अंडर राइटिंग का 1,20,000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो यहाँ पे दिया है कि ये जो सब्सक्रिप्शंस है इट इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग फॉर came for 28,80,000. So 28,80,000 में ये 60 और ये 60 तो इंक्लूडेड। अब कितना पैसा अभी भी खरीदना बाकी है, तो कंपनी को तो 1 लाख, कंपनी को तो 30 लाख शेयर सेल करना है, कंपनी को तो 30 लाख शेयर सेल करना है, जिसमें 28,80,000 तो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आ गया, पब्लिक ने ही खरीद लिया। तो अभी अंडर राइटर के ऊपर कितना लाइबिलिटी है, अंडर राइटर के ऊपर कितना लाइबिलिटी है, उसको कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। देखो अंडर राइटर इज अपॉइंटेड सो दैट ही जितना उसके ऊपर लाइबिलिटी होता है शेयर सेल करने का, उतना वो पब्लिक को सेल करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक को शेयर सेल नहीं कर पाया तो ही themselves have to purchase, they themselves have to purchase the share. So here व्हाइट को 15 लाख शेयर सेल करना था, ब्लैक को 15 लाख शेयर सेल करना था। एंडिंग में ब्लैक के ऊपर लाइबिलिटी है, वो 15 लाख शेयर पब्लिक को सेल नहीं कर पाया, उसको बचा हुआ शेयर जो वो पब्लिक को नहीं सेल कर पाया उसे खुद को खरीदना पड़ेगा। तो ब्लैक हैज टू परचेज 1,20,000 शेयर फ्रॉम हिज पॉकेट, उसको अपना, क्योंकि पब्लिक को सेल नहीं कर पाया उसको खुद को खरीदना पड़ेगा। सो ब्लैक अकाउंट डेबिट, उसको कितना शेयर 28,80,000, देखो 30 लाख शेयर सेल करना था, उसमें 28,80,000 तो हो गया सेल, तो बचा हुआ 1,20,000 में टोटल कितना पैसा उसको देना है, क्योंकि उसको 2.5 रुपीज एप्लीकेशन का एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट का, उसको टोटल करके 5.50 पे करना है, 2.5 रुपया 3 रुपया, 2.5 रुपया एप्लीकेशन का एंड 3 रुपया अलॉटमेंट का उसको पे करना है। तो इसके बाद यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे क्यों पैसा कलेक्ट कर रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए और दूसरा कलेक्ट कर रहे प्रीमियम के लिए 0.5। देखो अभी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो वो फ्यूचर में कंपनी कलेक्ट करने वाली है, तभी ब्लैक को भी देना पड़ेगा 1,20,000 शेयर्स के ऊपर। बट अभी ये क्वेश्चन में ओनली एप्लीकेशन मनी इज गिवन, एप्लीकेशन मनी के बारे में दिया है, अलॉटमेंट मनी के बारे में दिया है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूडेड है 0.50 का, बाकी पूरा पैसा 5 रुपया ये शेयर का पैसा है, तो शेयर का बाकी 5 रुपया, शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, शेयर कितना रुपीज का है 10 रुपीज का, जिसमें से हमने 2.5 रुपया एप्लीकेशन में मंगाया, बाकी का 2.5 रुपया अलॉटमेंट में मंगाया, बट अलॉटमेंट में 3 रुपया है जिसमें 50 पैसा इज रिलेटेड टू प्रीमियम। सो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग 6,60,000, next one is 6 lakh and the next one is 60,000 being अमाउंट पेबल या ड्यू बाय अंडर राइटर, अंडर राइटर को इतना पैसा पे करना है। अभी अलॉटमेंट मनी रिसीट का एंट्री अभी तक हमने लिया नहीं है, लेट अस सी, अभी तक अलॉटमेंट का पैसा ये पूरा मिलना चाहिए एंड अभी तक हमने ब्लैक से भी पैसा नहीं लिया। तो एक बार पब्लिक से एप्लीकेशन मिलने के बाद जब शेयर्स अलॉट करते हैं शेयर होल्डर को, तब हमें समझेगा ना कि अंडर राइटर को कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले अंडर राइटर शेयर खरीद नहीं सकता, अंडर राइटर विल परचेज द शेयर एट द एंड,
Underwriter will purchase the share at the end after he comes to know that how many shares are purchased by the public. पब्लिक जितना शेयर्स खरीदेगा उसका बैलेंस अंडरराइटर खरीदेगा, जितना शेयर्स का एप्लीकेशन मिलेगा उसका बैलेंस शेयर अंडरराइटर को खरीदना, तो वो तो बाद में ही समझ सकते। तो अभी पैसा मिलेगा, रिसीट ऑफ मनी, अंडरराइटर का भी और अलॉटमेंट का भी एक साथ ले लेते हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी अंडरराइटर को कितना पैसा देना है वो देगा, तो इट विल कम फ्रॉम द अंडरराइटर टू ब्लैक, ब्लैक को कितना पैसा देना है 6,60,000, जिसमें क्या इंक्लूडेड है 1,20,000 पे 5.5 रुपीज अंडरराइटर को देना है, और बाकी जो मिलेगा इट विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट में था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट में था, अभी कैंसिल करने पे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन ये 86,40,000 में हमें माइनस करना पड़ेगा 6,000 जो शेयर होल्डर है जिसने 3 रुपया नहीं दिया। समझ में आ रहा है? When we saw the question, we came to know that just see, let us go to the question. We came to know that 6,000 shares जो है fails to pay the amount due on allotment. तो 6,000 शेयर है, उसमें अमाउंट जितना अलॉटमेंट पे पे करना था वो फेल्ड टू पे मतलब पे नहीं किया। अलॉटमेंट में 3 रुपया पे करना था, तो यहाँ पे जो हमें अलॉटमेंट में पैसा मिलना था 86,40,000, उस पे 6,000 इंटू 3, बिकॉज 6,000 शेयर पे अलॉटमेंट में मिलने वाला पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला 18,000 नहीं मिला। 6,000 इंटू 3 is 18,000, तो 86,40,000 माइनस 18,000 करो, यू विल गेट 86,22,000। सो टोटल कितना पैसा मिला अलॉटमेंट का 92,82,000। इसको नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट received from allotment and underwriters. अंडरराइटर्स से भी पैसा मिला है। अब लास्ट में हमें कमीशन का एंट्री पास करना है, तो अंडरराइटिंग कमीशन ही हमारे लिए एक्सपेंस है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, दो अंडरराइटर है, यहाँ पे एक ही अंडरराइटर नहीं दो है, ब्लैक अकाउंट जिसको इक्वली अंडरराइटर कमीशन मिलने वाला है, टू वाइट अकाउंट, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन 4% है, देखो अंडरराइटिंग कमीशन इज 4% गिवन इन द क्वेश्चन। कमीशन कितना है 4% ऑफ इशू प्राइस, कमीशन कितना है 4% ऑफ द इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है 10 रुपया शेयर का, 50 पैसा प्रीमियम का, तो कितना है अंडरराइटिंग कमीशन, लेट अस सी इन द वर्किंग नोट। अंडरराइटिंग कमीशन इक्वल टू इशू प्राइस, तो 30 लाख शेयर्स है, इसका इशू प्राइस है 10 रुपीज पॉइंट 50 पैसा। समझ में आया? इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस मीन्स अमाउंट कितने में शेयर्स पब्लिक को सेल किया, यहाँ पे प्रीमियम में सेल किया 10 रुपीज का शेयर 5%, 10 का 50% है 0.5, प्रीमियम उसका 4%। सो कितना होता है ये करो, 30 लाख इंटू 30 लाख शेयर्स है, तो इधर 30 लाख शेयर्स है
into 10.5 which the issue price into 4%. कितना आता है? रुपीज 12,60,000 कितना मिला? 12,60,000 12,60,000 मिला। तो ये चीज को हमें दोनों अंडर राइटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज ये इक्वल अंडर राइटर्स है, इनको कमीशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली दिस कमीशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज पर द एग्रीमेंट। तो ये हो जाएगा 6,30,000, ये हो जाएगा 6 लाख। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है अंडर राइटिंग कमीशन हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बीइंग underwriting commission due, being underwriting commission payable या due। तो ये होने के बाद लास्ट एंट्री में क्या होगा? ये दो जो क्रेडिट में है उनको पैसा मिल जाएगा, तो ब्लैक अकाउंट डेबिट, और वाइट को भी पैसा मिल जाएगा, वाइट अकाउंट डेबिट टू क्या बाहर जाएगा? कमीशन पे करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करना है? 12,60,000, और ब्लैक को मिलेगा 6,30,000, वाइट को मिलेगा 6,30,000, बीइंग कमीशन पेड, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन paid. With this sum is done. Thank you very much, everyone.